Why the rule of law is important? The rule of law means that everyone in a country must have to follow the same rules. The constitution of the country guides to make laws. These laws help keep things fair and safe for everyone. In Pakistan, a fair judiciary system is established to provide justice to every citizen. The Supreme Court is the highest court in the country. The head of the Supreme Court is called Chief Justice. In every province of Pakistan, there is a high court, many civil courts and session courts. The police department also plays an important role in establishing the rule of law in society. Laws protect us from people who might want to commit crimes. If someone breaks the law, they have to face appropriate consequences based on the offense committed. This is important because it ensures that no one is above the law. Without laws, there would be chaos and it would be hard for people to trust each other. The rule of law help everyone to live together in peace. इसमें यह बताया गया है कि जो रूल ऑफ लॉ होते हैं वो किसी भी मुल्क में सबको फॉलो करने होते हैं और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो हमें गाइड करती है, कंट्री को गाइड करती है किस तरह से जो है वो लॉज बनाने हैं, कानून बनाने हैं और लॉज की मदद से ही है जो लोग वो सेफ़ रहते हैं। पाकिस्तान में एक फेयर जुडिशरी सिस्टम है जो कि सबको जस्टिस प्रोवाइड करता है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सब पाकिस्तान की सबसे जो वो मुल्क की सबसे बड़ी कोर्ट है और जिसका सरबराह होता है वो चीफ जस्टिस होता है। इसके बाद पाकिस्तान के सूबों में हाई कोर्ट्स होती हैं, बहुत सी सिविल कोर्ट्स होती हैं और सेशन कोर्ट्स होती हैं। पुलिस का डिपार्टमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी में जो है वो अमन अमान कायम रखने के लिए और लॉज को इस्टेब्लिश करने के लिए। लॉज जो हैं वो हमें उन लोगों से बचाते हैं, उन लोगों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं जो कि किसी भी किस्म का जुर्म करना चाहते हैं और अगर कोई लॉ तोड़ता है तो उसको उसके लिहाज से जो है वो नताइज भी भुगतने पड़ते हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे मेक श्योर होता है कि कोई भी जो है वो कानून से बालातर नहीं है और लॉज की मदद से ही जो है वो अमन अमान कायम रहता है और अगर कहीं पे कानून ना हो तो वहाँ पर जो है वो केओस की सिचुएशन हो जाए और लोगों का एक दूसरे से एतबार भी उठ जाए। तो हम कह सकते हैं कि जो रूल ऑफ लॉज हैं वो सबको इकट्ठा रखने के लिए, पीसफुली रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। नो मी child labor is a crime in Pakistan. No one can force a child under 14 years of age to work. When everyone gets equal rights in society, this is called social justice. जो चाइल्ड लेबर है वो पाकिस्तान में जुर्म है और कोई भी जो है वो 14 साल से कम उम्र के बच्चे को काम करने के लिए फ़ोर्स नहीं कर सकता और जब सबको माशरे में बराबरी के हकूक़ मिलते हैं तो उससे हम सोशल जस्टिस बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव पर्सनैलिटी एनालिसिस। व्हाई इज़ इट नेसेसरी टू फॉलो द रूल्स ऑफ गेम। आपने बताना है कि गेम के रूल्स को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट वी हैव पॉलिटिकल पार्टीज़। One day, Sir Zawar gave the student in his class the task of making the classroom more beautiful. All the children were very excited. They started doing different things. Some children started making charts, some started making posters on the walls, and some children started cleaning the floors. But still the work was not going well. Romesa was the smartest girl in the class. She gathered all the children and said, "Friends, in this way a lot of our time and efforts will be wasted. Because no one understands what to do, we should all work together as a group. All the children will consult each other and plan how to start and finish the work. Each will be assigned a different task. In this way, when we work as a group, it will be very useful." All the children accepted Romesa's words. They formed a group together. The group was named Class Beauty. They achieved their task very easily. A political party is formed in exactly the same way and works together for its manifesto in the same way. There are many political parties in a country. Every political party has its own motto. In general elections, people vote for these parties according to their choices. After the elections, the winning party takes its position in the government. इसमें इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि एक दिन सर जवार ने बच्चों को टास्क दिया कि वो क्लासरूम को खूबसूरत बनाए। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, सब ने काम करना शुरू किया लेकिन बहुत सा काम अभी भी रहता था। तो रोमेसा जो थी वो क्लास की सबसे स्मार्टेस्ट गर्ल थी, सबसे ज़हीन लड़की थी। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा कि हम जिस तरह से काम कर रहे हैं इस तरह से हमारा बहुत सा टाइम और हमारी एफ़र्ट्स वेस्ट हो रही हैं क्योंकि हम में से किसी को पता ही नहीं कि हमने क्या करना है, हमारी ड्यूटीज असाइंड ही नहीं है। हम सबको जो है एक ग्रुप में रह के इकट्ठे काम करना चाहिए और सब स्टूडेंट्स को एक दूसरे को कंसल्ट करना चाहिए और प्लान करना चाहिए किस तरह से काम स्टार्ट करना है और किस तरह से काम को ख़त्म करना है। इस तरह से उन्होंने सबको एक स्पेसिफिक टास्क असाइन किया और जब उन्होंने ग्रुप में काम किया तो उन्होंने बहुत एफिशिएंटली काम कर लिया और सब ने रोमेसा की बात को एक्सेप्ट किया और फिर उन्होंने जो है वो क्लास ब्यूटी के नाम से ग्रुप बनाया और उन्होंने फिर इस तरह से अपना टास्क बहुत इजीली अचीव कर लिया। और
पॉलिटिकल पार्टी भी इसी तरह से बनती है। लोग जो है वो जो सेम वे में थिंक कर रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो अपना मोटो होता है। जनरल इलेक्शंस में लोग अपनी चॉइसेस के मुताबिक इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट करते हैं और इलेक्शंस के बाद विनिंग पार्टी जो है वो अपना जो है ओहदा संभालती है। तो आपने ये बताना है कि व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। नेक्स्ट वी हैव फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। A political party performs different functions which are as follows. Without political parties, the democratic process in the country cannot move forward. Political parties create political understandings among the people. They bring people together on one platform. Political parties create awareness among people to solve social problems. Every political party works according to its manifesto. They represent the country at the international level. They raise voices against the wrong actions of the government. After being elected, the political party works for the development of the country. तो पॉलिटिकल पार्टी के बगैर जो है वो मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पॉलिटिकल लोगों के दरमियान पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती हैं और लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करती हैं। लोगों के दरमियान अवेयरनेस क्रिएट करती हैं और उन्हें बताती हैं कि अपने सोशल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग काम करती है और मुल्क को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करती है और जो रॉन्ग एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करती है और इलेक्ट होने के बाद मुल्क की बेहतरी के लिए काम करती है। सो यू हैव here is something for you. You have to read this. A famous philosopher Lowell says a public government cannot be established without political parties. Next we have personality analysis. If you make a political party in the future, what would you do for your people? आपने बताना है कि अगर आप फ्यूचर में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं तो आप लोगों के लिए क्या करेंगे। आपने सोचना है और आपने अपना आंसर इन लाइंस में राइट करना है। आज के लेसन में जो नए अल्फाज हमने सीखे हैं वो ये हैं: गवर्नमेंट, a group of people with the power to rule over the country; foreign policy, policy to make relations with other countries and world organizations; interdependence, to depend on each other; executive, having power to take actions apply; cabinet, a committee of senior ministers; constitution, a set of rules; crime, an action against law; victim, affected person; manifesto, a slogan। और आज के लेसन में जो हमने नई चीज़ें सीखी हैं वो ये है: नाउ यू रियलाइज द फेडरल गवर्नमेंट इज़ द बिगेस्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. द फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट वर्क टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री. द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स टू रन द कंट्री. The rule of law is important for a peaceful society. Political parties perform many important functions in a democratic country. जी, तो ये था आज का हमारा लेसन जिसमें हमने बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है एंड वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. हमने बात की कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान में रहने वाले शहरियों के क्या हकूक़ हैं, उनके क्या फ़राइज़ हैं, उनके राइट्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं. इसके बाद हमने बात की पॉलिटिकल पार्टीज़ की, किस तरह से वो बनती हैं और किस तरह से वो काम करती हैं. आई होप कि आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा, इंजॉय किया होगा. मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.